Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Muhammad Atiq Anwar, and you're watching my channel, Muhammad Atiq Anwar, and Education for Us All. A quick plea before we start to please watch fully and to please like, share, and subscribe to the channel. Okay, so as you can see, by popular request, recipe of the day is back. Took a little bit of a break from this because people requested other things. So this has been requested by friends who wanted the recipes in PowerPoint format, and that of course is very, very, very easy for me to do because I have the templates, and B, many of the recipes are from the BBC, so it's just a question of what can we say, pasting them. Copy and pasting them. Okay, so today's recipe very, very simple. We make this every week for the children. So it's tuna and broccoli pasta bake. नाजरीन खुश आमदीद, मेरा नाम है मोहम्मद अतीक अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद अतीक अनवर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। एक बार फिर है जी रेसिपी ऑफ द डे, और आज हम दिखाएंगे रेसिपी ट्यूना और ब्रोकली का बेक। ये बहुत 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 आसान है और बच्चों की बहुत पसंदीदा रेसिपी है। ओके, सो कुछ दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें राइटिंग में ये रेसिपीज हों, तो उनके लिए स्पेशली है ये। ओके, सो द recipe is tuna and broccoli pasta bake. Let's show you the ingredients. Okay, नाज़रीन ये हैं जी ingredients, ये आपको ज़रूरत होंगी। 200 grams of dried short pasta shapes such as fusilli or pen. सो नाजरीन ये पास्ता की किस्म है, एक को पेन कहा जाता है, दूसरी फूजली जो क्या कहें कह लीजिए होता है, वो फ्यूजली वो सीधा जो है वो पेन वाला होता है। 250 स्मॉल फ्रोज़न और फ्रेश ब्रोकली फ्लोरेट्स, 250 ग्राम जी हमें ब्रोकली ज़रूरत होगा। 40 grams of butter, 40 ग्राम बटर, 40 grams of plain flour, 40 ग्राम्स मैदा या आम आटा अगर वो नहीं है तो 600 milliliters of semi skimmed milk, 600 ग्राम नाजरीन दूध चाहिए। ये क्रीम इसकी उतारी जाती है जो सेमी स्किम्ड होता है, मगर ज़ाहिर आप के पास ये फैसिलिटी नहीं है तो 600 milliliters of दूध। 75 grams of cheddar cheese, 75 ग्राम चीज़ चाहिए चेडर। salt and freshly ground pepper, black pepper, नमक और काली मिर्ची। 1 tin of tuna, 185 grams, which of course is in water or in oil, which is known as brine. नाजरीन यहाँ ये ट्यूना के डब्बे मिलते हैं, 185 ग्राम होते हैं, वो या पानी में होते हैं या तेल होता है जिसे ब्राइन कहा जाता है, तो उस दोनों को जब इस हम कुक करेंगे निकालना है। 2 firm ripe tomatoes, sliced optional, दो टमाटर यहाँ लिखा हुआ है, अगर चाहिए, मगर मैं तो कहूँगा ज़रूर डालें। Okay, let's go to the method. Okay, half fill a large saucepan with water and bring it to boil. Add the pasta, return the water to the boil and cook according to the packet instructions until just tender. Just before the end of the cooking time, add frozen broccoli florets to the pan and cook with the pasta for the final 2-3 minutes until tender. Okay, so बहुत से अल्फाज लिखे हुए मगर मुख्तसर ये है कि आपने पास्ता कुक करना है। आम वो 10 मिनट्स में हो जाता है मेरे एक्सपीरियंस
से, मगर आपने उसे 8 मिनट करना है, यानी मुकम्मल नहीं करना है। ओके जी, ये पास्ता उबले हुए पानी में डालना है, तो जैसा मैं कह रहा हूँ 8 मिनट्स में ये इसे क्या कहें, थोड़ा 80% होना चाहिए। तो इस वक्त आपने ब्रोकली डालनी है और 2 या 3 मिनट्स और कुक करना है। Meanwhile, heat the butter, flour, milk in a saucepan over medium heat and mixture is just bubbling, whisking smoothly with a balloon whisk until smooth and thickened to a roux. Okay, roux, that's a French word. Okay, that's a special French word for the mixing of flour and milk, as far as I know. ओके जी, आपने बटर एक पैन में डालना है, तो इसमें आटा डालना है, मैदा डालना है, दूध डालना है। तो इसे हम विस्क करेंगे जी, वो गोल वाली जो होती है विस्क, पेंट नहीं हम कहते, वो पटवारी में और ऐसा इसे स्मूथ बनाना है। ये रू जो है ये फ्रेंच वर्ड है, ये जो आटा और दूध के साथ जो हम सॉस बना रहे हैं उसका स्पेशल वर्ड है जी। Continue to cook the roux for a further 2 to 3 minutes, stirring constantly until it has thickened enough to coat back of the spoon. Stir in half of the cheese until melted, then season to taste with salt and freshly ground pepper. ओके जी, आपने और कुक करना है 2 या 3 मिनट्स और खूब उसे हिलाना है ताकि गाढ़ा हो और चम्मच के पीछे वो स्टिक हो, तो ऐसा आपको पता चल जाएगा कि अब उसका टेक्सचर ठीक है। ओके, फिर हमने चीज़ डालनी है और उसे पिघलाना है। तो फिर हम यहाँ और मसाले भी डालते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है जी नमक और काली मिर्ची, पर अगर मैं गरम मसाला और थोड़ी सी मिर्ची भी डाल देता हूँ। ओके, so that's the one side. Preheat the grill to its high setting. फिर हमने ग्रिल ऑन करनी है, अगर वो नहीं तो कुकर पे भी ये हो सकता है। Drain the pasta and broccoli in the large colander and transfer to a pre-warmed shallow oven-proof dish. A lasagna dish is ideal. Flake the tuna on top of the pasta and broccoli. Okay जी, हमने जो पास्ता और ब्रोकली था उसे एक अगेन मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, छानने वाली होल्स वाला जो कंटेनर होता है उसे कोलांडर कहा जाता है नाजरीन। तो पानी निकालना है। तो फिर ये जो है जी हम एक डिश में डालना है जिसको हमने पहले गरम किया होना चाहिए, जो ओवन में हम डालेंगे। Pour the cheese sauce over the pasta, then top with sliced tomatoes if using. Sprinkle the remaining cheese. Okay, नाजरीन, मैंने पिछले इंस्ट्रक्शन में ये नहीं बताया था कि आपने ट्यूना भी डालना है उस ब्रोकली और पास्ता पर। और अब हम बेकिंग डिश में डाल चुके हैं, तो फिर इस पे हम डालेंगे जी चीज़ का जो सॉस हमने तैयार किया है। ओके, दैट इज़ इट। तो ये हम ओवन में रखेंगे, या सॉरी ग्रिल में रखेंगे। मैं तो ओवन में भी इसे तैयार करता हूँ। सॉरी, मैंने पहले कुकर चूल्हा का था, मैं कहना चाहता था ओवन। Okay, place the pasta, bake under a hot grill for 4 to 5 minutes or until the cheese melts and starts to turn golden brown. Serve immediately. ये यहाँ तक है नाजरीन, ये ग्रिल में भी बन सकता है और ओवन में बन सकता है। तो ये प्रोसेस तकरीबन 4 से 5 मिनट्स लगते हैं। आपने चीज़ को पिघलाना है, तो that is it. That is yummy pasta tuna bake. Okay, let's show you a picture if the computer allows it.
There we go. That is lovely. So I would say definitely the tomatoes on top. ये देखो नाजरीन टमाटर ऊपर कितने क्या कहें प्यारे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं ये देखो जी चीज़ भी कैसी मेल्ट हो गई है इट रियली इज़ चिल्ड्रंस फेवरेट और ट्यूना की बात ही और है अगर और एक और टिप है जी अगर ट्यूना में पहले ये मसाले कुछ डाल दें तो और ज़्यादा लजीज होगा Okay, that is it. Thank you very much. Sorry, I did. Sorry, forget to mention there is the Urdu. Please read it again. I'm over 10 minutes and I don't like it to be over 10 minutes. नाज़रीन ये उर्दू आप अपने टाइम में पढ़ लेना अगर मैंने पढ़ा था बहुत देर होगी मैं 10 मिनट्स चाहता था मगर बहुत ज़्यादा हो गया Oh, thank you for watching. Please keep watching. Please like, share, and subscribe to the channel. Tell all your friends about the channel. Until the next time, look after yourselves, look after others. नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया प्राय मेहरबानी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा औरों को चैनल के बारे में बताइएगा अपना ख्याल रखना दूसरों का ख्याल रखना दुआओं में याद रखना अल्लाह हाफिज़